गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों. In our previous lecture, I told you about some basic things about transformer. Then we have discussed about the basic transformation equation and also the transformation constant. Yes. After that, I told you about step up and step down transformers. Fine. Now, let's take transformer now in a particular way. Okay. Trying to define the things, particularly in the segments like what is the basic principle, okay, what is theory, working, and also some more details. Okay, so first of all, what is the basic principle of a transformer? Now you have gone through the lecture, okay, so you must be knowing that particular thing, what basically is the principle, okay, defining the working of a transformer. Now, basic principle of a transformer is, as you all know, is mutual induction. Mutual induction is basically the property of the pair of coils when time varying current is applied to one coil and an induced EMF appears in the other coil. The coil to which the time varying current is applied is called as primary coil, and the coil in which the induced EMF appears is called as secondary coil. So in the same manner, transformer का construction भी same था हमारा, core and then primary and secondary coils. Let us see. Now, this is highly permeable core. Highly permeable core made of soft iron. Made of soft iron. It's fine. Highly permeable core made of soft iron. Okay, और इस core पे fine coils are winded. One coil, okay, and this is another coil. Another coil. One coil is called as primary coil, and primary coil, suppose P1, P2, this is the primary coil, okay, and S1, S2 is the secondary coil. To primary coil we apply the time varying current, and across secondary coil induced EMF appears. Primary coil, secondary coil. Let primary coil is having number of turns, okay, NP. It's okay, number of turns NP, and secondary coil is having number of turns NS. It's okay. Now, if EMF applied over here at primary is EP and EMF induced over here is ES, then जो EMF induced in secondary coil, okay, उसको हमने कैसे लिखा था? That was like this. Okay, using Faraday laws we have told this particular thing कि EMF per turn in the secondary is equal to EMF per turn associated with a primary coil. लेकिन कब? When there is no loss of energy. It's okay. Fine. So this was the equation of transformer. Okay. उसके बाद one of the equation we have written in terms of current. That was current in the secondary coil is equal to NP by NS into IP. Now, if you remember,
हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो डिफाइन किया था के की टर्म में। के इज इक्वल टू हमने लिखा था NS बाय NP। ओके, NS बाय NP को हमने के लिखा था। तो इन द व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन द करंट एसोसिएटेड विद सेकेंडरी कॉइल हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे 1/K इंटू करंट एसोसिएटेड विद प्राइमरी। तो ये जो इक्वेशन है हमारा, दिस इक्वेशन प्रोवाइड्स अस द रिलेशन बिटवीन ओके प्राइमरी करंट इन द प्राइमरी कॉइल एंड करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। फिर उसके बाद हमने आपको स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बताया था एंड आई टोल्ड यू दिस पर्टिकुलर थिंग कि व्हेन EMF induced in the secondary is greater than EMF applied to the primary coil, तो step up transformer होता है। Then we have step up transformer, ठीक, step up transformer, okay, and for that NS by NP ratio is greater than 1, mean K is greater than 1, transformation ratio is greater than 1, it's okay। और फिर हमने आपको बताया था कि when we have a step up transformer as the value of K is greater than 1, है ना, यहां पे डालने के बाद from this particular equation we got to know this particular thing that in a step up transformer the current flowing in the secondary coil is lesser in comparison to primary coil, है ना, mean secondary में EMF ज्यादा होता है ओके इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, लेकिन करंट रिड्यूसेस। व्हाई? क्योंकि पावर गोज कांस्टेंट, P इज इक्वल टू E इंटू आई। इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर अगर EMF इंक्रीज कर रहा है तो करंट क्या करेगा? रिड्यूस करेगा इन ऑर्डर टू हैव कांस्टेंट पावर, और सेम थिंग हैपेंस। फाइन, नाउ अप टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट we have discussed the things in detail, or in ideal situation we have created these equations। लेकिन अगर रियलिटी की बात करें, रियलिटी में तो एनर्जी कांस्टेंट होता ही नहीं है। यस, so many losses, so many energy losses are there in a transformer। सिंपल सा एग्जांपल ही अगर लें, ओके, नाउ प्राइमरी ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, we have assumed this particular thing कि all the magnetic energy from here is reaching from here to here, but that is not a possible thing, okay, वो तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा। यहां से एनर्जी जब यहां जाएगा, सम ऑफ द लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस, ओके, वो सिस्टम से बाहर निकलेंगी कोर से, है ना, तो बाहर जो निकल गया दैट इज लॉस्ट, सम ऑफ द एनर्जी विल बी लॉस्ट। अदर थिंग, ये कॉइल्स हैं, ये वायर्स हैं जो हमारी, इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो दीज वायर्स आर हैविंग रेजिस्टेंसेस, तो करंट फ्लो कर रहा है, I square RT, हीट विल बी प्रोड्यूस्ड इन दीज कॉइल्स, ये कॉइल्स गर्म होंगी, ओके, इफ द हीट विल बी प्रोड्यूस्ड दैट विल बी लॉस्ट टू एटमॉस्फेयर, ओके, तो दीज आर द कॉमन लॉसेस आई टोल्ड यू। अदर स्पेसिफिक लॉसेस आर आल्सो देयर इन ट्रांसफार्मर, ठीक। तो नाउ यू नो, थोड़ा अब आइडल सिचुएशन से बाहर आके ओके रियलिटी डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एंड डिफाइनिंग दैट रियलिटी, अब हम सबसे पहले बात करते हैं लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर। इट्स ओके, सी, वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ लॉस इज कॉपर लॉस। अब ये आप सोच रहे हो कॉपर लॉस बनता कैसे? कॉपर लॉस बेसिकली, ये वायर हमारा कॉपर का है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल कॉपर से बनी है, ठीक है, कॉपर वायर दैट हैव रेजिस्टेंस, कॉपर वायर हैव रेजिस्टेंस। तो जब इस वायर से करंट जाएगा, प्राइमरी हो या सेकेंडरी, करंट तो फ्लो कर ही रहा है ना, ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर। अब देखो होता क्या है, करंट व्हेन फ्लोज थ्रू प्राइमरी और सेकेंडरी, resistance of copper wire say RC and current flows for time T, then this much heat will be produced, okay, heat produce होगा, coil को गर्म करेगा, coil को गर्म करेगा तो
energy will be radiated. Heat energy will be radiated to open atmosphere. अब जो एनर्जी रेडिएट हो गया वो वापस तो नहीं आएगा, तो दैट वॉट एवर एनर्जी इज रेडिएटेड दैट इज लॉस्ट बेसिकली. तो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लॉस इज कॉल्ड एज कॉपर लॉस. आराम से इसको रीड कर लो. फाइन. When current flows through respective coils, fine, the coils gets heated up. Okay, the coils gets heated up and the heat energy radiated from coil is lost. ठीक है, this particular loss is counted as copper loss. ठीक? Okay. Now the second type of loss basically is iron loss. Now see, iron loss होता क्या है पहले वो समझ लो. ये हमारा सॉफ्ट आयरन कोर है. सॉफ्ट आयरन कोर. नाउ जब यहां पे हम टाइम वेरिंग करंट लगाएंगे, दैट इज एसी करंट लगाएंगे, ओके, तो ये जो कोर है दिस विल बी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम वेरिंग फ्लक्स. जब ये टाइम वेरिंग फ्लक्स के इन्फ्लुएंस में होगा बल्कि मटेरियल के अंदर क्या होता है, एडी करंट्स आर फॉर्म. ठीक, तो एडी करंट्स बिकॉज आर फॉर्म्ड, ओके, तो एडी करंट्स के कारण व्हाट हैपेंस बेसिकली, जो ये कोर है ना, ये एडी करंट्स के कारण हीट हो जाता है. ठीक है, एडी करंट्स आर फॉर्म्ड एंड दिस कोर गेट्स हीटेड अप. तो जब हीट हो जाएगा व्हाट विल बी हैपनिंग, हीट एनर्जी रेडिएट करेगा. हीट एनर्जी रेडिएट करेगा तो वट एवर एनर्जी इज रेडिएटेड दैट इज लॉस फ्रॉम द सिस्टम. बेसिकली सिस्टम से लॉस हो गई ना, तो दैट विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू लॉस. और ये जो आयरन गर्म होने के कारण एनर्जी रेडिएशन हुआ, दिस लॉस इज काउंटेड एज आयरन लॉस. नाउ दिस इज योर आयरन लॉस बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एडी करंट्स in transformer core. The core gets heated up. जब करंट होगा तो कोर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है ना, तो आई स्क्वायर आर टी हीट बनेगा एंड ये हीट क्या करेगा, रेडिएट करेगा. एंड वट एवर इज रेडिएटेड फ्रॉम सिस्टम, वट एवर हीट एनर्जी इज रेडिएटेड फ्रॉम सिस्टम, क्या करेगा वो, दैट विल बी लीडिंग टू लॉस ऑफ एनर्जी. ओके, एंड दैट लॉस बेसिकली इज द आयरन लॉस. To minimize iron loss, what we do basically? जो कोर होता है ना, कोर को हम स्लाइसिंग करके लैमिनेट कर देते हैं. ओके, दैट प्रोसेस बेसिकली इज कॉल्ड एज लैमिनेशन. ओके, तो वी यूज लैमिनेटेड कोर टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एडी करंट्स. इट्स ओके, यू शुड बी नोइंग दिस पर्टिकुलर थिंग. पूछा जा सकता है. इट्स ओके. Now the next loss basically is loss of energy due to leakage magnetic flux. Okay, क्या होता है, प्राइमरी में जितना फ्लक्स बना वो पूरा फ्लक्स यहां नहीं पहुंचता है. Some of the flux that gets leaked from the core. ठीक है, तो this particular thing leads to the leakage of energy in the form of magnetic flux. See, all the magnetic flux, okay, as I told, can't reach from one coil to another coil. चाहे हम कितना भी coils को पैक कर लें, even if we have best insulation, okay, तो जो लीक कर गया that is loss. So that lead to basically the loss of magnetic energy due to leakage of magnetic flux. Okay, now another type of loss is basically loss of energy due to magnetization and demagnetization of core. Fine, this loss is called as hysteresis loss. Now see, ये loss आता कैसे है. यहां पे आपने AC अप्लाई किया, एसी करंट आएगा तो ये कोर जो है बेसिकली कोर मैग्नेटिक बन जाती है. इलेक्ट्रोमैग्नेट ना, व्हेन करंट इज मेड टू पास, है ना, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है अराउंड. तो इस एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है. जब यहां पे एसी का मैग्नीट्यूड
डिक्रीज करेगा तो वो डीमैग्नेटाइज होगा बेसिकली। तो ड्यू टू एसी साइकिल करंट इंक्रीज करता है तो मैग्नेटाइजेशन, करंट डिक्रीज करता है तो डीमैग्नेटाइजेशन। तो इस मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन के कारण बेसिकली क्या होता है, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ना, इसके जो एटॉमिक मैग्नेट्स होते हैं, एटॉमिक मैग्नेट्स, वो क्या करते रहते हैं, अलेन करते रहते हैं, रैंडमाइज होते रहते हैं, अलेन करते रहते हैं, रैंडमाइज होते रहते हैं। तो इस अलेनमेंट एंड रैंडमाइजेशन के प्रोसेस में, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस में ओके एनर्जी लॉस होता है बेटा। फाइन, दैट एनर्जी लॉस बेसिकली इज कॉल्ड एज hysteresis loss. It's okay. So this basically is happening because of magnetization and demagnetization of the core of transformer. Now, another type of loss in transformer is magnetostriction. अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है ना? कभी अगर आप ट्रांसफार्मर के पास खड़े हुए हो तो जस्ट थिंक ऑफ ट्रांसफार्मर से एक हमिंग साउंड आ रहा होता है। ओके, अगर कभी ऑब्जर्व नहीं किया ना, ओके, जस्ट गो टू सम नियर बाय ट्रांसफार्मर और उससे थोड़ा डिस्टेंस पे खड़े होके कंसंट्रेट करना उस साउंड में विच इज कमिंग फ्रॉम ट्रांसफार्मर। ठीक है, होता क्या है, जब एसी time varying current is applied to some material that start vibrating, वाइब्रेट करने लगता है तो क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। एटमॉस्फेयर के अंदर वाइब्रेशन पार्टिकल जनरेट करेंगे, वो वाइब्रेशन विल बी ट्रांसफर टू पार्टिकल्स जो बॉडी से, तो ट्रांसफार्म जो पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा दैट विल बी गिविंग द हमिंग साउंड। ठीक है, तो दैट energy which is going to produce sound, that basically is lost, and that loss basically is called as magnetostriction. Magnetostriction basically is loss of energy in the form of sound energy. The humming noise of the transformer basically leads to this type of loss. Okay, तो जो एनर्जी साउंड के फॉर्म में लॉस कर जाता है दैट बेसिकली लीड्स टू द loss of energy in the form of sound, and that is called as magnetostriction. Now, as ट्रांसफार्मर में लॉसेस बहुत सारे है ना, मतलब आउटपुट पावर जो है वो इनपुट पावर के बराबर नहीं है। तो इफ आउटपुट पावर इज नॉट इक्वल टू इनपुट पावर, अब किसी ट्रांसफार्मर में लॉसेस ज्यादा होंगे तो आउटपुट पावर कम होगी, और किसी ट्रांसफार्मर में लॉसेस कम होंगे आउटपुट पावर ज्यादा होगी, है ना। तो ड्यू टू दिस रीजन वी विल बी हैविंग गुड ट्रांसफार्मर एंड बैड ट्रांसफार्मर। फाइन, तो दिस गुड ट्रांसफार्मर एंड बैड ट्रांसफार्मर, these will be defined by the efficiency of transformer. How we define basically the efficiency of transformer? Efficiency of transformer basically is the ratio of output power to the input power of transformer. Ratio of output power to the इनपुट पावर ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब पावर आउटपुट क्या है, पावर एसोसिएटेड विद सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल का पावर क्या होगा, ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी कॉइल मल्टीप्लाइड बाय करंट ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। यस, इनपुट पावर ऑफ ट्रांसफार्मर जो है दैट इज पावर एसोसिएटेड विद प्राइमरी कॉइल, ईएमएफ विद प्राइमरी मल्टीप्लाइड बाय करंट विद प्राइमरी, and the efficiency of transformer written by eta is equal to output power over input power, and which is equal to ESIS over EP into IP. Okay, now if you want to have result in the form of, if you want to define the efficiency in terms of percentage efficiency, तो आप क्या करोगे, multiply this relation by 100.
then percentage efficiency के फॉर्म में we can write it something like this: ESIS over EPIP multiplied by 100. This will be giving the percentage efficiency. It's okay? So this is all about a transformer. Now, one more thing you can ask over here, which I discussed, when starting with the transformer. ठीक, मैंने ये कहा था कि जो ट्रांसमिशन है, ओके, जब हम कहीं इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं, एसी को ट्रांसमिट करते हैं, ओके, व्हाट वी डू बेसिकली, हम क्या कर रहे होते हैं, ठीक है, हम at the start of transmission, okay, we use a step up transformer. We use a step up transformer at the start of the transmission line. Why so? ऐसा क्यों? पहले क्वेश्चन रीड करो आराम से. Why electricity is transmitted after stepping up, okay, or at high voltage? ठीक, अब ध्यान देना. What's the solution part for this? See, transmission line जो है, okay, transmission line, उसका कुछ resistance होता है, okay. Now, resistance के accordingly जब इस transmission line से current I flow करेगा, what will be happening? Transmission line के अंदर in accordance to resistance and value of current I square R into T heat produce होगा. अब अगर ये करंट ज्यादा होता है तो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और हीट ज्यादा प्रोड्यूस हुआ तो हीट विल बी रेडिएटेड, तो एनर्जी लॉस को लीड करेगा या नहीं करेगा? तो एज मच हीट विल बी रेडिएटेड, दैट विल बी लीडिंग टू एनर्जी लॉस. इट्स ओके. तो अगर मैं इस लॉस को मिनिमाइज करना चाहता हूं इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो एनर्जी लॉस हो रहा है, आई नीड टू मिनिमाइज द करंट. मतलब जो ट्रांसमिशन है वो मिनिमम करंट के ऊपर होना चाहिए. इट्स ओके. करंट हैज टू बी मिनिमम. अब करंट हैज टू बी मिनिमम मतलब जो करंट है उसको अगर कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो, हमने कहा था पावर इज ट्रांसमिटेड E into I. If this current is to be minimized, EMF के लिए क्या करना पड़ेगा? It is to be maximized. मतलब इसका मैग्नीट्यूड हमें इंक्रीज करना पड़ेगा टू ट्रांसमिट द पावर. करंट कम कर दो, EMF बढ़ा दो. EMF को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, ओके. किस ट्रांसफार्मर को यूज करके EMF को इंक्रीज करेंगे? दैट इज यूजिंग अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ओके. To minimize the heat loss, the current has to be minimum. Okay, current has to be minimized. Mean EMF has to be maximized. EMF has to be maximized. Mean EMF को बढ़ाना है ना, and EMF can be increased only using a step-up transformer. Therefore, a step-up transformer is used at the start of a transmission line. ठीक है. और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, ओके, इज डन एट हाई वोल्टेज. ठीक है. जो बड़े बड़े टावर लाइंस है ना, इन लाइंस में 33,000 वोल्ट, 66,000 वोल्ट पर वी ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी, और जो करंट होता है वो मिलीज में होता है. इट्स ओके. सो एज आई थिंक you all must have understood the transformer in a good way. Okay, now revise it from your book also, and if you find any kind of confusion or problem, let me know about. Okay, thank you, have a nice day.